Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Last week I was talking about a topic, send more laborers or workers in God's kingdom. पिछले हफ्ते में आपसे बात कर रहा था एक शीर्षक के ऊपर कि उस जगह पर खेत में और भी मजदूरों को परमेश्वर भेजे, Sending more laborers. और मजदूरों को भेजना और सहकर्मियों को भेजना, And to do that, और उसके लिए we need to understand few aspects or facts from the Bible. हमें बाइबल से कुछ तथ्य और सत्य की बातों को जानना जरूरी है. These days I am just trying to encourage the whole church to fulfill the Great Commission. इन दिनों में मैं कलीसिया को उत्साहित कर रहा हूँ, पूरी कलीसिया को, कि वो महान आज्ञा को पूरा करे. And we have a great commission from our Lord to go into the world and preach the gospel. और हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह से ये महान आज्ञा मिली है कि हम पूरी दुनिया में जाएं और सुसमाचार प्रचार करें. See, many of us, the churches in the world, they are losing the flavor of praying and preaching the gospel. आप देखिए दुनिया में बहुत सी जगहों पर बहुत सी कलीसिया सुसमाचार सुनाना और परमेश्वर की महान आज्ञा को पूरा करने के स्वाद को खोते जा रहे But हैं. God wants us to go. लेकिन परमेश्वर चाहता है हम जाएं. I always say there are two legs of the church that church is standing. मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि कलीसिया दो पैरों पर खड़ी है. One is prayer एक है प्रार्थना, and another is gospel. और दूसरा उसका पैर है सुसमाचार, Evangelism. सुसमाचार. If any of this leg is broken, the church is limping, the church is lame, and the church cannot walk and cannot grow. अगर दोनों पैरों में से एक में भी परेशानी है तो वो कलीसिया लंगड़ी कलीसिया है, उसे लंगड़ के चलना पड़ेगा और वो कभी भी बढ़ेगी नहीं. And every believer is responsible to pray and preach the gospel. और हर एक विश्वासी सुसमाचार सुनाने के लिए और प्रार्थना करने के लिए जिम्मेदार है. Prayer and preaching is not the job of a pastor or a leader, but it's the job of the every person in the church. और सुसमाचार सुनाना किसी एक पासवान का या कलीसिया के अगुओं का काम नहीं है, लेकिन वो कलीसिया के हर एक विश्वासी का काम है. Hallelujah. हालेलुया. So it's very, very important. तो ये बहुत ही जरूरी है ये बात. Let's see what is happening here. आइए देखें यहाँ पर क्या हो रहा We है. see Jesus went about all the cities and villages. हम देखते हैं यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा. In Matthew, the Gospel of Matthew, chapter 9, verse 35 to 38. और मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 35 से 38 आयत हम पढ़ रहे हैं. And is teaching in their synagogues, और वो उनके आराधनालयों में उपदेश दिया करता the था, Jewish temple, जो यहूदी आराधनालय मंदिर थे. and then preaching the gospel of the kingdom. और राज्य का सुसमाचार प्रचार वो कर रहा था. And healing every sickness and every disease among the people. और हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को वो दूर करता रहा. Here is the catch. और यहाँ पर सुनिए. But when he saw the multitude, लेकिन जब उसने भीड़ को देखा, he was moved with compassion उसको लोगों पर तरस आया for them, उनके लिए, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए थे, बिखरे हुए थे. And then he said to his disciples, और फिर उसने अपने चेलों से कहा, the harvest is truly plentiful, but the laborers are few. पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे. Listen once again. सुनिए एक बार फिर से. The last one, जो आखिरी बात है, 38 words. 38 आयत. Therefore इसलिए pray. प्रार्थना करो. Pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. खेत के स्वामी से विनती करो, प्रार्थना करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे. Amen. Amen. Look at me. मेरी ओर देखिए. Now listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से. अब Last week I was talking about prayer, पिछले हफ्ते मैं आपसे प्रार्थना के बारे में बात कर रहा था, because sending is the second job, prayer is the first job. क्योंकि भेजना दूसरा काम है, प्रार्थना करना पहला काम है. Anyone who is going or being sent without a prayer is going to spoil God's work rather than making his work and progressing his work. कोई भी अगर बिना प्रार्थना के वो जा रहा है या फिर उसे अब भेजा जा रहा है तो वो परमेश्वर के काम को बढ़ाने और उन्नति करने के बजाय उसका नुकसान ही करेगा. We see a lot of people are sent, a lot of ordinations taking place, a lot of people are being authorized and people are being sent on the mission trips. They are going but not having a kind of a huge impact or effect,
because the prayer is not happening. हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से आज के कलीसियाओं में और दुनिया में लोगों को एक सेवक के रूप में भेजा जा रहा है, उनकी नियुक्ति की जा रही है और वो दुनिया में फील्ड में आगे काम करने जा तो रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो बिल्कुल दिख नहीं रहा है। We need to understand something. हमें एक बात को समझने की जरूरत है। The last verse says, आखिरी आयत ये कहती है, Jesus talking to his disciples, यीशु अपने चेलों से बात कर रहे हैं, the disciples who are going to be on the mission very soon, और वो चेले जो बहुत ही जल्दी अपने उस मिशन पर काम करने the वाले थे, disciples who are in the discipleship classes of Jesus, और वो चेले जो यीशु के चेलेपन की कक्षा में थे, the disciples who are under training, वो चेले जो प्रशिक्षण पा रहे थे, the disciples who have been with Jesus day and night, वो चेले जो दिन रात यीशु के साथ लगे थे, the Lord is telling them, प्रभु उनको बता रहे हैं, pray, प्रार्थना करो, pray, प्रार्थना करो, pray. प्रार्थना करो। Oh, I feel his presence when I'm talking about और it. जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं उसकी उपस्थिति को महसूस कर The सकता Lord is हूं, encouraging his disciples. और प्रभु अपने चेलों को उत्साहित कर रहा है। The first job is prayer. पहला काम है प्रार्थना। Before you do anything, कोई भी काम करने से पहले before you go in the mission field, और मिशन फील्ड में जाने से पहले, before you preach the gospel, सुसमाचार सुनाने के लिए बाहर निकलने से पहले, before, hey believers, listen to this. और विश्वासियों सुनिए सुनिए, Before you start your day, इससे पहले कि अपने दिन की आप शुरुआत करें, you have to pray. आपको प्रार्थना करनी जरूरी है। Once you are awake in the morning, एक बार जब सुबह उठ जाते हैं, you have to pray first. आपको सबसे पहले प्रार्थना करना जरूरी है। Don't go and catch your phone. और जाकर अपने फोन पर मत लग जाएं। Don't start your day अपने दिन की शुरुआत फोन से with मत करें, television or और newspaper. टीवी और न्यूज़पेपर अखबार पढ़ के मन ना करें। We used to do that हम once, ऐसा किया करते थे एक समय but पर, now we are in Christ Jesus. लेकिन अब हम मसीह यीशु में हैं, We are new creation. हम नई सृष्टि बन गए We हैं। got to pray first. हमें सबसे पहले प्रार्थना करना जरूरी Then है, phone, TV, newspaper. उसके बाद फोन टीवी न्यूज़पेपर कुछ भी आप करें। Hallelujah. हालेलुया। So what is the first job for every person? सो हर एक व्यक्ति के लिए सबसे पहला काम क्या है? It's a prayer. वो है प्रार्थना करना। If you don't pray, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, you are actually not doing God's work. तो आप परमेश्वर के काम को नहीं कर रहे I हैं। was reading this in the middle of the night and getting some revelation that I'm going to share with you. और आधी रात को मैं एक बात पढ़ रहा था और मुझे वो प्रकाशन मिला जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, Let me share this one with you. और इस बात को मैं आपके साथ रखता हूँ। In the whole world, पूरी दुनिया में wherever the preachers are preaching, जहाँ कहीं भी प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, wherever the gospel is being preached, जहाँ कहीं भी सुसमाचार सुनाया जा रहा है, wherever the work of the evangelism is being happening, जहाँ कहीं भी सुसमाचार की सेवा हो रही है, wherever God's people working जहाँ कहीं भी परमेश्वर के लोग काम कर रहे हैं, across the globe, पूरी दुनिया में if we only pray, अगर हम केवल प्रार्थना करें, we have a portion with them. तो उनके साथ हमारा भी हिस्सा है। We have a participation in that तो work. हमारी सहभागिता उनके Oh. काम में भी बन जाएगी। You missed it what I said. आपने खो दिया इसे जो बात मैंने कही। You might have not gone to America. हो सकता है आप अमेरिका नहीं गए होंगे, You might have not been to Africa, आप अफ्रीका नहीं गए होंगे, Australia. ऑस्ट्रेलिया नहीं गए But होंगे, if you are praying every day for the whole nation, लेकिन अगर आप पूरे देश के लिए हर रोज प्रार्थना कर रहे हैं, and if God is going to save souls in Africa, और अगर परमेश्वर अफ्रीका में प्राणों को आत्माओं को बचा रहा है, the credit he will give it to you. तो उसका लाभ वो आपको भी देगा, उसका प्रतिफल आपको भी देगा। God will remember your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर याद रखेगा। God would say, oh yes, someone is also praying in this matter, in this job, in this work of the kingdom. परमेश्वर ये कहेगा कि इस सुसमाचार के काम में, राज्य के काम में कोई है जो इसके लिए प्रार्थना भी कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening, people क्या of आप God? सुन रहे हैं परमेश्वर के लोगों? Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से इस बात को। Where we cannot go, जहां हम नहीं जा सकते, our prayers can go. हमारी प्रार्थना जा सकती है। I'll repeat once मैं again. फिर से दोहराऊंगा इस बात को। Where you cannot go, जहां आप नहीं जा सकते, your prayers can go. आपकी प्रार्थना जा सकती है। Prayer is an important job, प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण काम है, and prayer is not costly. और प्रार्थना कीमती नहीं है। You don't have to pay anything. आपको कुछ भी चुकाना नहीं है उसके You लिए। just need to take some time out and start praying. आपको बस थोड़ा समय निकालना है और प्रार्थना करना है। Just like some other missionaries and some other mission work that is happening in our country. और बिल्कुल वैसे ही हमारे और भी जो मिशनरी वाले काम हमारे देश में हमारे सेवक लोग मिलकर कर रहे हैं, What we do? हम क्या करते हैं? We support them. हम उन
हम उनके साथ रहते हैं, we help them, हम उनकी मदद करते we हैं, try to be with them, हम कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ मदद कर पाएं, like Bible Society of India, जैसे बाइबल सोसाइटी ऑफ like इंडिया, Gideon's International, जैसे गिडियंस इंटरनेशनल, like Blind Missions. जैसे ब्लाइंड मिशन. So many people, बहुत से लोग हैं, when they come to us, जब वो हमारे पास आते हैं, what we do, हम क्या करते we हैं? sow the seed, हम बीज बोते हैं, we sow the seed. हम बीज हम बो देते हैं. So I cannot go to all the nations, सो मैं सारे देश में नहीं जा सकता हूँ, but लेकिन what I'm sowing, जो मैं बो रहा हूँ, it will go to everywhere. और वो हर जगह जाएगा, It will go वो everywhere. हर जगह पर जाएगा, The fruit will come everywhere. जो फल है हर जगह आएगा. You missed it what I said. आपने खो दिया इस बात को जो मैंने You are कही. sowing here in your nation. आप यहाँ रहकर अपने देश में बो रहे You are हैं, sowing in your country. अपने देश अपने राष्ट्र में आप बो रहे You are हैं, sowing in your church. अपनी कलीसिया में आप बो रहे हैं, But the result will be worldwide. लेकिन उसका प्रतिफल, उसका जो फल है वो पूरी दुनिया में दिखेगा. Hallelujah. हालेलुया. Somebody shout amen. कोई जोर से कहे आमीन. Praise God. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. That is why इसीलिए prayer is the first job. प्रार्थना सबसे पहला काम Prayer है. is important. प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है. Prayer will not cost you anything. प्रार्थना से कुछ भी आपका नहीं लगेगा. Oh, any worker who thinks he is a worker, the first job you do is start with prayer. कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को सहकर्मी समझता है परमेश्वर का और परमेश्वर के लोगों का, तो सबसे पहला काम आपके लिए है कि आप प्रार्थना से शुरुआत करें. Why some people sow every time when there is a need in the church? Listen to this. सुनिए इस बात को कि क्यों लोग जब भी कलीसिया में कोई भी जरूरत होती है, हर बार वो बीज बोते हैं. When they are asked to give good to God, because this mission is here in the church, they are visiting and they are in need of some donation so that they can do God's work. Why some people understand the urgency and importance of sowing the seed into every mission? Because they want to participate in every God's work, because they understand I cannot go, but my seed will go and it will produce the result, it will produce the fruit, and one day God will remember me because I was one of the sowers. क्यों ऐसा होता है कि जब भी संस्थाएं जो सुसमाचार के काम को कर रही हैं, जो अलग अलग सेवा को फैला रही हैं, जो परमेश्वर के राज्य के फैलाने के काम में लगी हुई हैं, जब भी वो कलीसिया में आती हैं, जब भी कोई डोनेशन के लिए कोई भेंट की बात की जाती है, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हर बार एक बीज को बोते हैं, वो डालते हैं इस बात पर विश्वास करते हुए कि मैं तो उस जगह पर नहीं जा सकता, लेकिन मेरा बीज उस देश में, उस जगह पर, उस सेवा के लिए इस्तेमाल होने वाला है और परमेश्वर उसके जरिए मुझे 100 गुना आशीषित जरूर करेगा. Listen to this. सुनिए इस बात को. Why some people participate even they have it or not have it? क्यों कुछ लोग तब भी हिस्सा लेते हैं चाहे उनके पास हो या ना हो. What I believe, मैं क्या विश्वास करता हूं, the people who sow are the same people who pray. वो लोग जो बीज बोते हैं ये वही लोग हैं जो प्रार्थना भी करते हैं. I believe मेरा विश्वास ये है, the people who are not sowing, they are also not praying. वो लोग जो बीज नहीं बो रहे यानी कि वो प्रार्थना भी नहीं कर रहे. So I can say it's like this. सो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं Sowers इसको, are prayer warriors, बीज बोने वाले लोग प्रार्थना योद्धा हैं and prayer warriors are also sowers. और प्रार्थना योद्धा ही बीज बोने वाले भी हैं. You cannot do one and stop another. आप एक काम करके दूसरा रोक नहीं सकते. I mean, you cannot just pray and but not helping the church. यानी कि आप प्रार्थना कर रहे हैं इसका मतलब, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा कि हाँ आप कलीसिया में बीज नहीं बो रहे. Hallelujah. हालेलुया. क्या आप मेरा बात को समझ रहा है? Hallelujah. This is very, very important, very unique, people of God. Let's understand this. परमेश्वर के लोगों हम समझें इस बात को, ये बहुत ही जरूरी है समझना हमें. Very important. बहुत ही जरूरी बात है. And some people are sowers. और कुछ लोग बीज बोने वाले लोग हैं. But I believe लेकिन मेरा विश्वास ये है, the sowers, they also believe in the power of prayer. बीज बोने वाले लोग प्रार्थना की सामर्थ पर भी विश्वास करते हैं. They pray for the seed they sown. वो प्रार्थना करते हैं उस बीज के लिए जो उन्होंने बोया होता है. You know why? क्या आप जानते क्यों? Have you ever listened to this one? सुनिए इस बात को ध्यान It's से. not even my notes, but I'm just, I have not even started my notes. I'm just talking something that is coming directly as a revelation. मैंने अपना प्रचार, अपने नोट्स को भी शुरू नहीं किया है. ये नोट्स में मेरे नहीं है, ये वो बातें हैं जो मुझे प्रकाशन सीधा ऊपर से मिल रहे हैं परमेश्वर की तरफ से. Have you seen these farmers? क्या आपने किसानों को देखा है? When they sow, जब किसान एक बीज बोता है, and once the sowing part is done, एक बार जब बोने वाला
काम खत्म हो जाता है। They wish and pray for a good harvest. वो प्रार्थना करते हैं और एक अच्छी फसल के लिए कामना विनती करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Even in many parts of our nation, यहाँ तक कि हमारे बहुत देश के अलग अलग हिस्सों में भी there is a celebration एक उत्सव भी होता है, like Baisakhi. जैसा कि बैसाखी It's a का, harvest festival. और वो फसल का एक पर्व होता है। Amen. Amen. And some people, they even go to different temples and they go to their different deities and they pray, they offer prayers for a good harvest. और यहाँ तक कि आप देखिए हमारे देश में लोग अलग अलग पूजा और अलग अलग देवी देवताओं को चढ़ावा भी चढ़ाते हैं और अलग अलग बातें और पर्व करते हैं ताकि उनकी फसल एक अच्छी फसल आ सके। What I mean, मेरा कहने का मतलब क्या when you है? give your tithes, जब आप अपना दशमांश देते हैं, when you sow a seed, जब आप एक बीज बोते हैं, when you give offering to the जब Lord, आप परमेश्वर को भेंट देते when हैं, you sow a donation, जब आप एक दान देते हैं, just pray. प्रार्थना करें। Pray for the seed. बीज के लिए प्रार्थना करें। You should not be ashamed. आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। Oh, why should I pray for just 100 rupees? और मुझे 100 रुपए के लिए क्यों प्रार्थना करनी It चाहिए? is not 100 ये rupees. 100 रुपए नहीं है, It is a seed. ये एक बीज है। Seed is small, बीज छोटा ही होता है, but the result is so enormous. लेकिन उसकी फसल, उसका फल बहुत ही बड़ा होता है। Hallelujah. हालेलुया। We eat mangoes. हम आम खाते हैं। In these seasons, I believe you must have eaten some mangoes. आपने इस मौसम में जरूर आम जरूर खाए होंगे। You must have those kind of opportunities. You must have those opportunities where you had some mangoes there. आपको जरूर ये अवसर मिला होगा कि आपने अपने घर में कहीं भी बाहर कहीं ना कहीं तो अब जरूर आपने आम का स्वाद जरूर चखा होगा। How much was the size of the seed? बीज का जो साइज, उसका आकार था वो कितना था? Maybe this much. इतना बड़ा। But have you seen the mango trees? लेकिन क्या आपने वो आम के पेड़ को देखा है? वो कितने They are बड़े और so विशाल huge. होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं वो, So big. बहुत ही बड़े बड़े The branches. जो उसकी डालियां होती हैं। Hello. क्या आप मेरे साथ हैं? आप सुन रहे हैं मुझे? Are you with me? हालेलुया। Don't underestimate the power of your seed. अपने बीज की सामर्थ को कम ना समझें, Yeah. Because you know what? क्योंकि क्या आप जानते हैं On that day, उस दिन when that lady gave everything out of her almost nothing, जब उस स्त्री ने, उस महिला ने, जब उसके पास कुछ भी नहीं था उसमें से उसने कुछ दिया, you know what happened? क्या आप जानते हैं उस समय क्या हुआ? Jesus observed that. यीशु ने वो देखा, Jesus noticed that. यीशु ने बड़ा ध्यान से उस बात को देखा। And what was the word from the mouth of Jesus? यीशु के मुंह से कौन से शब्द निकले थे? Truly I say, सच सच मैं कहता this हूँ, woman has given more than everybody. इस महिला ने सबसे ज्यादा सब में से दिया है। Because everybody, they gave out of their abundance, क्योंकि सभी लोगों ने अपनी बहुतायत में से दिया है, but she gave out of her lackness. लेकिन इसने अपनी घटी से भी उत्तम दिया है। She gave everything what she had. जो कुछ उसके पास था उसने सब कुछ दे दिया। Remember the widow and the prophet Elisha. और भविष्यवक्ता एलीशा और उस विधवा को याद रखिए। The widow had little oil. विधवा के पास थोड़ा तेल था, But what was the outcome? लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? What was the result? उसका फल क्या निकला? She got all the bands and the vessels from the neighbor's और house. अपने पड़ोसियों से, अपने आसपास की जगह से सबसे वो बर्तन मांग के ले आई। And you know what happened? और क्या आप जानते क्या We हुआ? know the story. हम कहानी जानते All हैं। the bands and vessels were filled. सारे बर्तन पूरा मुंहामुंह भर गए। Hallelujah. हालेलुया। Overflowing. उमड़ने लग गए। And the oil was not yet और finished. तेल तब भी खत्म नहीं हुआ था। Just like the rain in Chandigarh और today. बिल्कुल आज चंडीगढ़ में बारिश की जैसे। If it is going to rain now, और अभी भी बारिश चल रही है। I believe by the evening we all are also taking out water from our house. मुझे लगता है कि शाम तक हमें भी अपने अपने घरों से, मुझे भी अपने घर से पानी बाहर निकालना पड़ेगा। Now listen to this, people of सुनिए इस God. बात को, Very important. बड़े ही ध्यान से सुनिए। So some people, they sow always because they want to participate, always they want to be involved in God's work every time. सो कुछ लोग हमेशा बीज बोते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के काम में, परमेश्वर की सेवा में हर बार अपना हिस्सा, अपना योगदान देना चाहते हैं। They always want to stand for God's work. वो हमेशा परमेश्वर के काम के लिए खड़े रहना चाहते हैं। Some people, they stop themselves. Sometimes they choose when to do it and when not to do it. Sometimes I'm talking about the church. I'm not talking about everywhere in the world, but I'm talking about their own church. It's like every time you stand, every time you participate. और मैं बाकी जगह की बात नहीं कर रहा, मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना कई बार चुनाव करते हैं कि वो किस में योगदान देंगे, किस में नहीं देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं लेकिन जो हमेशा हर एक सेवा काम के लिए अपना योगदान, अपना
हिस्सा, अपना बीज जरूर बोते हैं। I'm talking about the church. मैं कलीसिया की ही बात कर रहा हूँ। I'm not talking about anybody anywhere else. मैं किसी और जगह की बात नहीं कर रहा, कलीसिया की मैं बात कर रहा हूँ। Listen very carefully. सुनिए ध्यान से इस बात को। When we are lazy to give, जब हम देने के लिए आलसी हैं, we are also lazy to pray. तो हम प्रार्थना करने के लिए भी आलसी ही होंगे। So let's finish the giving part. Now let's talk about the praying part. ठीक है, देने वाली बात को समाप्त करके आप प्रार्थना की बात पर आते हैं। What Jesus is asking? यीशु क्या कह रहे हैं यहाँ In verse पर 38, 38 आयत में, therefore pray the Lord, इसलिए तुम स्वामी से विनती करो, pray the Lord of the harvest, खेत के स्वामी से विनती करो to send out laborers into his harvest. कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर को भेज दे। You know what would be the best job for all of us, क्या आप जानते हैं हम सब के लिए एक अच्छा काम क्या होगा, which we do not understand and don't do? जो हम ना तो समझते हैं और ना ही करते हैं? Every day, हर रोज pray for your church, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, pray for evangelism, सुसमाचार के लिए प्रार्थना pray for करें, co-workers, सहकर्मियों के लिए प्रार्थना pray करें, for replication, रेप्लिकेशन के लिए प्रार्थना pray करें, for evangelism, सुसमाचार फैलाने के लिए pray प्रार्थना for करें, discipleship team, चेलेपन के लिए प्रार्थना करें कि pray बढ़ for सके, advanced team, एडवांस टीम के लिए प्रार्थना करें, pray for Chandigarh branch, चंडीगढ़ ब्रांच के लिए प्रार्थना pray करें, for Sonipat branch, सोनीपत ब्रांच के लिए प्रार्थना pray करें, for Gorakhpur branch, गोरखपुर ब्रांच के लिए प्रार्थना करें, pray for Punjab branches, पंजाब के ब्रांचेस के लिए प्रार्थना pray for करें, Delhi branch. दिल्ली ब्रांच के लिए प्रार्थना करें, Not only that, और केवल इतना ही नहीं, pray for all the churches in India, भारत के सभी कलीसियाओं के लिए भी आप प्रार्थना करें, pray for all the churches in the world, और दुनिया में जितनी कलीसियाएं हैं उसके लिए भी प्रार्थना करें, pray for all the leaders and pastors in the world. दुनिया के जितने भी पासवान और अगुवे हैं उनके लिए प्रार्थना करें। And if you're praying earnestly, और अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, एक दिल की इच्छा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, let me tell you what you're doing. तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप क्या कर रहे हैं। You are participating in every mission, every ministry, every person who is walking and evangelizing and saving the soul. And I'm telling you a secret, when they are going to heaven, God is going to give you the benefit, God is going to give you the reward, because you were the prayer warrior, you were the prayer support, you were the prayer backup for even for their evangelism. If you limit your prayer, you are limiting your reward. But if you open your heart and if you're praying every day for the work of evangelism, for the co-workers, some people, they're busy praying for their needs, busy praying for their family, busy praying for their own wants, and nothing is happening, nothing is moving out. But I have a news for you. If you start praying for the laborers, if you start praying for the harvest, I have a news for you. You are going to have your part in every person who's going to be saved upon the face of the earth, and you are going to have the reward. This is a secret. Note it down, practices, and you are going to see the biggest miracle of your life. Amen, amen. Oh my God, I'm Hallelujah. preaching something Praise good God, today. hallelujah. Go मैं ahead, कुछ go अच्छा प्रचार आज आपके सामने कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात, कि जो लोग कलीसिया में बोल रहे हैं, जो लोग किसी जगह पर जा नहीं रहे, किसी और जगह किसी देश के लिए, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे हैं, जितने भी दुनिया में लोग सेवक हैं, जितने भी पासवान हैं, जितने भी संस्थाएं हैं जो सुसमाचार के काम को फैलाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए वो काम कर रहे हैं, अगर वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो याद रखिए जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर अवश्य आपको उसका प्रतिफल जरूर देगा। जो आत्माएं बचेंगी, जो प्राण स्वर्ग के राज्य में बचाए जाएंगे, उन लोगों के द्वारा, उन देश के द्वारा, उस सेवक के द्वारा, उन संस्थाओं के द्वारा परमेश्वर जरूर आपको स्मरण करेगा। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप अपने टीम्स के लिए प्रार्थना करें, अपने चेलेपन के लिए प्रार्थना करें, अपने एडवांस टीम के लिए, अपने सहकर्मियों के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के सेवक जो लोग हैं, कलीसिया के पासवान हैं, और जितने भी सुसमाचार काम के लिए परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए जरूर कर रहे हैं, जरूर आप प्रार्थना करें ताकि आपका प्रतिफल परमेश्वर जरूर आपको दे। Amen. Amen. Great translation. Hallelujah. Hallelujah. जैसे बोना एक काम है, बोने से दरवाजे खुलते हैं, जितनी बार आप बोते हैं उतनी बार आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं उसके काम के लिए, वैसी प्रार्थना एक काम है। अगर हम आत्मिक आलसी हैं, ना तो हम प्रार्थना करेंगे और ना ही हम बोएंगे। आत्मिक आलस आपको दोनों कामों से रोकेगा। एक्चुअली में शैतान भी आपको दोनों कामों से रोकेगा। लेकिन अगर आपको ये बात समझ में आ रही जो मैं आज बोल रहा हूं, प्रार्थना करना कितना जरूरी है। प्रभु कहता पहला काम ही प्रार्थना है। तुम जा नहीं सकते बहुत से देशों में, तुम बहुत से शहरों में नहीं जा सकते, शायद तुम्हारे कदम
सुसमाचार के लिए ना निकले पाए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जान पर खेल कर दूसरे शहरों में जा रहे हैं, जो घर में रुक नहीं रहे, जो दिन रात प्रभु के काम में लगे हुए हैं, जिनको धुन चढ़ी हुई है, जो यात्रा में ही रह रहे हैं, अपने घर लौटते महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार। अगर तुम सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु ये लोग सुसमाचार कार्य के लिए जा रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में खोए हुए लोगों को बचा रहे हैं, प्रभु ये भारत के अलग अलग कोने में, ये पाकिस्तान में, ये दुनिया के हर एक देश में लोगों को बचा रहे हैं, और प्रभु जो भी सुसमाचार का कार्य कर रहा है, अगर आलस होगा तो आप सिर्फ एक बार में बोल देंगे प्रभु संसार के लोगों पर आशीष दे, लेकिन थोड़ा सा आलस से बाहर निकालना है। देशों का नाम ले लेकर को-वर्कर्स, इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर्स, लीडर और बहुत सी संस्थाएं जो काम कर रही है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, बोझ के साथ प्रार्थना करता हूं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करता हूं, आत्मा में प्रार्थना करता हूं प्रभु कि तू उनको इस्तेमाल करना, उनके रास्ते की अड़चन को हटा देना, वे और भी आत्माओं को बचाने पाए। जैसे मैं बच गया, मैं नाश नहीं हुआ, वैसे और भी कोई नाश नहीं होना चाहिए। हर एक आत्मा जरूरी है। जिसने ये भेद समझ लिया और जो ये प्रार्थनाएं करने लग जाएगा, मैं कहता हूं परमेश्वर आपके घर पर उन आशीष के द्वार को अपने आप खोल देगा। आलस हमें रोकता है प्रार्थना, हम अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पाते, दूसरों के लिए कैसे करेंगे? लेकिन अगर आज से आपने प्रार्थनाएं चालू कर दी, मैं बोलना चाहता हूं कुछ महान आपके जीवन में खुलने वाला है, कुछ महान आपके जीवन में होने वाला है। एंड somebody shout amen। कोई जोर से कहे आमीन। Oh glory to God। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। Last week I was talking about the revelation, breathe in, breathe out। और पिछले हफ्ते में आपसे उस प्रकाशन के बारे में बात कर रहा था, सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना। As breathing in, breathing out is so important to live physically। और शारीरिक देह में हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम सांस लें और सांस छोड़ें। In the same way, वैसे ही our prayer हमारी प्रार्थना is breathe in, breathe out। वो है सांस लेना और सांस बाहर निकालना। We cannot live without breathing। हम बिना सांस लिए नहीं रह सकते हैं। We cannot live without oxygen। बिना ऑक्सीजन के हम नहीं जी सकते हैं। It is very, very important। ये बहुत ही जरूरी है। And we have learned it so well in Corona period। और हमने कोरोना काल में से बहुत अच्छे से सीखा है। Oxygen was very costly, people। उस ऑक्सीजन, सांस बहुत ही जरूरी और कीमती हो गई थी उस समय। Do you remember that? क्या आपको याद है वो समय? Now I have a news for you। अब मेरे पास आपके लिए खबर है And I want to talk to you। और मैं आपसे इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। Very important thing। बहुत ही जरूरी बात। Hallelujah। हालेलुया। Listen to this very carefully। सुनिए इस बात को। Prayer is your spiritual oxygen। प्रार्थना आपकी आत्मिक सांस है। Prayer is the oxygen of your spiritual body। प्रार्थना आपकी आत्मिक देह की सांस है। When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, you are actually breathing। आप सांस ले रहे हैं। You're breathing spiritually। आप आत्मिक रीति से सांस ले रहे हैं। You're giving life to your body। आप अपने शरीर को जीवन दे The रहे हैं। spiritual body। आत्मिक देह को। So God is trying to give us a wisdom सो परमेश्वर हमें एक बुद्धि देने की कोशिश to कर रहा spend है time in prayer। कि प्रार्थना में समय बिताओ। If you forget to pray even a day, अगर आप एक दिन भी प्रार्थना करना भूल जाएंगे, you are going to die। तो आप मर जाएंगे। Your physical body will be there, आपकी शारीरिक देह रहेगी, but लेकिन your spiritual body, आपकी आत्मिक देह, your spiritual being आपकी आत्मिक देह will die। वो मर जाएगी। So I want to encourage तो you, मैं आपको उत्साहित करना चाहता start हूँ, praying। प्रार्थना करना शुरू कर दें। Start praying every day। हर रोज प्रार्थना करना शुरू कर दें। Don't give chance to the devil। शैतान को मौका मत दें। God needs your prayer परमेश्वर को आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है to move। चलने के So लिए। first thing, people of God, पहली बात, pray। प्रार्थना करें। Pray। प्रार्थना करें। Pray। प्रार्थना करें। How to pray? कैसे प्रार्थना करें? Pray on your knees। अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करें। Pray with your tears। आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। Pray with burden। बोझ के साथ प्रार्थना Pray करें। early morning। सुबह उठकर प्रार्थना करें। Pray in the night। रात में प्रार्थना करें। Pray in your office breaks। अपने ऑफिस के बीच के समय में प्रार्थना करें। Pray in your car। अपनी गाड़ी में प्रार्थना करें। Pray on your Activa। अपनी एक्टिवा पर प्रार्थना करें। Because if you don't pray in these times, अगर आप ऐसे समयों में प्रार्थना नहीं करेंगे these places, और इन जगहों पर प्रार्थना नहीं करेंगे, then Satan will turn these spiritual battles, these holy places into a sinful
places. तो शैतान जो कि हर समय हमारे साथ एक युद्ध में है, वो इन सारे आत्मिक स्थानों को एक पाप वाला स्थान में बदल देगा। Are you listening, people क्या of आप सुन God? रहे हैं परमेश्वर के लोगों? Very, very important. और बहुत ही जरूरी बात है So let's ये। start praying. सो प्रार्थना करना शुरू कर दें। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. So let me start my sermon सो आइए मैं अपने प्रचार को शुरू करता हूँ and from the notes. और नोट से। So harvest and labors, very, very important. सो हम खेत के स्वामी और उससे बाइबल कह रही है हम विनती करें कि मजदूर को भेजा जाए। Now the question is, अब सवाल ये है who are the laborers? मजदूर कौन है? Look at the person who's sitting next to you in your जो house. आपके घर में आपके बगल में व्यक्ति बैठा है उसको देखें। Even your child आपका चाहे बच्चा भी हो, छोटा बच्चा भी, who cannot understand you, जो समझ नहीं सकता आपको, tell him, उससे कहें you are God's labor. आप परमेश्वर के मजदूर हैं। बोलिए, you are बोलिए God's आप labor. परमेश्वर के मजदूर हैं। आप परमेश्वर के मजदूर आप हैं. परमेश्वर के मजदूर हैं। बोलिए Amen. आमीन। We all are God's labor. हम सभी परमेश्वर के मजदूर हैं। Hallelujah. हालेलुया। Very important. बहुत ही जरूरी बात। Now, अब सुनिए, actually, we all are harvesters. हम सभी वो खेत के मजदूर हैं। Harvesters, yeah. हम सभी मजदूर हैं, फसल काटने वाले लोग हैं। And I'm going to talk few things about the harvesters, the laborers. और मैं मजदूर के बारे में यानी फसल काटने वालों के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। How many here today have ever planted something? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी कुछ भी बोया होगा, लगाया होगा या कुछ उगाया होगा? What do we do after planting? हम पौधा लगाने के बाद क्या करते हैं? We wait. हम इंतजार करते हैं। We pour water. हम पानी डालते हैं। First of all, obviously seed. और पहले बीज डालते हैं। And then water. फिर पानी डालते हैं उस पे। Then fertilizers. फिर उस पे खाद डालते हैं। And then we wait. और फिर हम इंतजार करते हैं। We wait for the harvest. हम फसल का इंतजार करते हैं। So this is very, very important for us to understand. सो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। Seed is our part. बीज बोना हमारा काम है, Means prayer is my part. यानी कि प्रार्थना मेरा काम है। Giving what I have is my part. जो मेरे पास है वो देना वो मेरा काम है। Taking that 1 rupee out of my pocket and और give it in the offering is my part. और अपनी जेब से वो 1 रुपए निकाल कर ऑफरिंग में डालना, भेंट चढ़ाना मेरा काम है। Seed is in my hand. बीज मेरे हाथ में है। But anybody who ever planted something, can anybody tell me that you can say the harvest is also in my hands? लेकिन आप में से कभी भी अगर किसी ने बीज बोया हो, कुछ लगाया होगा, तो क्या कोई आप में से कह सकता है कि फसल भी मेरे ही हाथ में थी? Let me tell you something. आपको No, कुछ बताना चाहता हूं, नहीं। don't miss the revelation. प्रकाशन मत खोइए। Seed is in your hand. बीज आपके हाथ में है। Water is in your hand. पानी डालना आपके हाथ में है। Fertilizers are in your hand. खाद डालना आपकी काम है, आपका काम है। Soil is in your hand. मिट्टी को वहां डालना भी आपका काम है। Field is yours. जो खेत है वो आपका है, भूमि आपकी है। But who will grow the harvest? लेकिन फसल को बढ़ाएगा कौन, उगाएगा कौन? The Lord. वो है परमेश्वर। The Lord is the Lord of harvest. और वो प्रभु खेत का स्वामी जो है वो परमेश्वर, वो खेत का स्वामी भी है। That is why in verse 38 Jesus is not saying pray to the Lord of seed, Lord of water, Lord of soil, Lord of fertilizers, but he says Hallelujah. pray to the Lord of harvest. आमीन। इसीलिए बाइबल में 38 आयत में यीशु ये नहीं कहते कि तुम इसलिए उस खेत के स्वामी से और उस बीज के स्वामी से, उस खाद के स्वामी से, पानी के स्वामी से विनती करो, लेकिन वो ये कह रहा है कि खेत के स्वामी से जो परमेश्वर है उससे विनती करो। Hallelujah. हालेलुया। फसल के स्वामी से विनती करना है। फसल प्रभु के हाथ में है, तो अपने किसी भी बीज को रोकिए मत। प्रार्थना की बीज को मत रोकिए। प्रार्थना बोना है, प्रार्थना निवेश करना है। जितनी बार आप प्रार्थना करते हैं उतनी बार आप निवेश करते हैं। सो प्रार्थनाओं को मत रोकिए, प्रार्थना बोते रहिए। सुबह बोइए और दूसरे लोगों के लिए बोना शुरू करिए। मिशंस के लिए बोना शुरू करिए, प्रभु के जनों के लिए बोना शुरू करिए, परमेश्वर के सेवकों के लिए बोना शुरू करिए। ना प्रार्थना बोना रोकिए, क्योंकि बीज है वो और बीज आपके हाथ में है। अगर आप बीज बोएंगे ही नहीं तो आपको कटनी या फसल मिलेगी कैसे? इसीलिए अपना थोड़ा सा तेल भी मत रोकिए ये कहकर कि मेरे पास थोड़ा ही है। जब भी परमेश्वर बुलाए, जब भी भविष्यवक्ता घर पे नजर आए, जो है वो दे दीजिए, क्योंकि बीज आपके हाथ में है और फसल उसके हाथ में है। Hallelujah. Praise God. If anybody who's not sowing the prayer and sowing what they have, if not sowing their oil, it means they don't believe God.
सो अगर कोई भी ऐसा है जो तेल उनके पास है यानी प्रार्थना करना, और जो बीज उनके पास है अगर वो उसको नहीं बो रहे, तो इसका मतलब आप परमेश्वर से वो फल नहीं पाने वाले। इसका मतलब आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। उस विधवा को विश्वास था कि मैं ये तेल दूंगी, मेरे पास ये बीज है, और परमेश्वर ने उसके घर के सभी बर्तनों को भर दिया। एक किसान जब अपने खेत में बीज बोता है तो वो सिर्फ विश्वास से बोता है। वो जमीन के अंदर जाके नहीं देख सकता कि फसल हो रही है कि नहीं। वो अपना काम करता है, वो खाद डालता है, पानी डालता है। क्या है खाद और पानी? आपने प्रार्थना कर दी, आपने बीज बो दिया, अब आप प्रार्थना करते रहिए। अब आप अपने जीवन पे ध्यान दीजिए। क्या है वो? जब वो जाकर घास निकालता है ताकि मेरी फसल खराब ना हो। अपने जीवन में जब आपने बीज बो दिया है, शैतान की बातों को मत आने दीजिए। कई बार हम बीज बो देते हैं लेकिन भ्रष्ट हो जाते हैं, पॉल्यूट हो जाते हैं, हम प्रदूषित हो जाते हैं। दुनियावी बातें हमारे अंदर आ जाती है, शैतान की बातें आ जाती हैं। तो बीज बड़ा भी हुआ, फसल आई भी, पर वो दबा लेती है। हम उसको एंजॉय, वी कैन नॉट एंजॉय आवर ओन हार्वेस्ट बिकॉज द क्रॉप्स आर ग्रोइंग, बट एट द सेम टाइम दिस sucker branches are also growing. हम अपनी ही फसल का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि फसल तो बढ़ रही है, वो बढ़ गई है, लेकिन साथ ही साथ वो चूसने वाली फसल भी, झाड़ियां और वो डालियां भी बढ़कर उसको दबा रही हैं। Praise God. Praise God. So let me talk a few more things. आइए मैं और कुछ और बातें आपसे करूं। First of all, if you want to be an effective harvester, अगर आप एक प्रभावशाली फसल काटने वाले बनना चाहते हैं, we have 3 needs. तो 3 जरूरतें हैं। 3 needs of a great harvester. एक बड़े और महान फसल काटने वाले के लिए 3 जरूरतें हैं, Or a great laborer. या एक बड़े मजदूर के लिए। Number 1, पहला, the attitude of a harvester. और उस मजदूर का यानी फसल काटने वाले का रवैया कैसा है। Let's read 35 and 36. 35 और 36 आयत हम पढ़ते हैं। Yeah. यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। Yeah. Look at the attitude of Jesus. यीशु का बर्ताव यहाँ देखिए। Attitude is important. रवैया यानी बर्ताव बहुत जरूरी है, Control our attitude. लेकिन हम अपने बर्ताव पर नियंत्रण कर सकते हैं। Gospel have some snapshots of the disciples having bad attitudes in the Bible. और सुसमाचार की पत्रियों में कुछ ऐसी जगह है जो वो सुसमाचार लिखते हैं जहां पर चेलों का बर्ताव, चेलों की आदत ठीक नहीं थी। I'll go quickly and tell you मैं what जल्दी it जल्दी आपको बताता हूँ वो कहां पर है। is. Luke 18 records लूका 18 में लिखा है, they turning the children away from Jesus. यीशु से वो बच्चों को दूर हटाने लग गई They don't bother about Jesus. और यीशु की उन्होंने परवाह नहीं की। Mark 9 tells us the disciples arguing among themselves who will be greatest in the kingdom. मरकुस 9 में हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर के राज्य में कौन बड़ा है, इस लड़ाई को चेलों के बीच में होने लग जाती है। ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो हार्वेस्टर हैं, ये लोग लेबरर हैं, ये लोग आने वाले टाइम पर बहुत बड़ी फसल काटने वाले हैं। पतरस 3000 लोगों को एक ही प्रचार में लेकर आने वाला है, लेकिन इनका रवैया देखिए। मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, आज शायद आप चेलेपन की ट्रेनिंग ले रहे होंगे, आप शायद आज कोवर्कर्स होंगे, आप शायद अपने घर में बैठे होंगे, आपका एटीट्यूड बैड होगा, लेकिन परमेश्वर उससे भी बड़ा कुछ देख रहा है जो आप होने वाले हैं। एंड लुक एट हाउ दिस डिसाइपल्स दे स्टार्टेड देयर लाइफ। और आप देखिए इन चेलों ने अपने जीवन को कैसे शुरू किया था। हाउ दे स्टार्टेड, उन्होंने किस प्रकार से शुरुआत की व्हाट थी? हैपेंड टू देम, और क्या हुआ उनको? टेकिंग द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम जीसस। बच्चों को यीशु से वो दूर करने लग गई। हैव वी एवर डन दैट टू योर पास्टर? और क्या आपने भी कभी ऐसे अपने पासवान के साथ किया है? माय पास्टर इज वीआईपी पर्सन। ओ मेरे पासवान वीआईपी हैं, यू कैन नॉट गो टू हिम, आप उनके पास नहीं जा सकते। हे यू नीड अ परमिशन, आपको परमिशन की जरूरत है, यू नीड एन अपॉइंटमेंट, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। यू कैन नॉट गो नियर टू हिम, आप उनके Yeah. पास जा ही नहीं सकते। Don't try to take it to the other side when the usher stop you and tells you to come one by one. That is a different thing. That is a part of discipline. But I'm talking about something else. और आप इसको दूसरे तरीके से मत समझिएगा कि जब अशर्स आपको रुकने के लिए कहते हैं कि और लाइन में आने के लिए कहते हैं कि एक एक करके जाएं, क्योंकि वो अनुशासन का भाग है। लेकिन यहाँ पर मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूँ। Pastor has to eat. पास्टर को खाना भी खाना As है, Jesus said to his disciples, जैसा यीशु ने अपने चेलों से the कहा। crowd would come. भीड़ आती रहेगी, They will not stop. वो रुकेगी नहीं, Let's come and eat first. लेकिन
लेकिन आओ पहले हम कुछ खा लेते हैं। So Jesus is a God of balance. सो आप देखिए यीशु एक संतुलित परमेश्वर है। Amen. Amen. He knows when to eat वो जानता है कब खाना है and when to serve, और कब सेवा करना है, when to work कब काम करना and है when to be in the और church. कब कलीसिया में होना है। Right? Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। I have the media manager, so I'm talking to everybody here. तो मैं सबसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ। Praise God. Now Praise listen, God। listen very सुनिए अब carefully. इस बात को ध्यान So, से। see, look at what disciples are तो अब doing. देखिए चेले क्या कर रहे हैं। The harvester attitude. जो फसल काटने वाला एक मजदूर का रवैया क्या है। Oh, they are taking the children out. बच्चों को वो दूर लेके जा रहे हैं। Then, उसके बाद argument. बहस उनके बीच में होने लग जाती Peter है। says, I'm great. पतरस कहते हैं मैं बड़ा हूँ। John says, no, I यूहन्ना am the कहता है great. कि नहीं नहीं मैं बड़ा हूँ। And everyone is saying, no, no, I am great. और सब लोगों के बीच बहस होने लगे कि कौन बड़ा है, कौन Oh, बड़ा है। have you ever gone through all these things whether you think that you're superior, you're better than others? क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आप ये सोचने लग गए हो कि हाँ आप दूसरों से बेहतर हैं, उनसे बड़े हैं। I got the highest marks in the discipleship और test, so I am the greatest. डिसाइपलशिप में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं तो मैं सबसे बड़ा हूँ। I'm educated. मैं पढ़ा लिखा हूँ I come from convent school. और मैं पढ़े लिखे स्कूल से आता So हूँ, I मैंने am पढ़ाई the अच्छी की greatest है man. तो मैं इसलिए सबसे बड़ा हूँ। Oh, I stay with pastor मैं पास्टर के साथ रहता हूँ, near his house. उसके घर उनके घर So के पास I रहता am the हूँ greatest तो one. मैं सबसे बड़ा हूँ। Oh, I serve my Lord, my Savior, so I am the greatest तो one. मैंने अपने प्रभु परमेश्वर की सेवा की है इसलिए मैं बड़ा हूँ। Jesus spent more time with me than anybody else, means I am the greatest one. यीशु ने मेरे साथ सबसे ज्यादा समय बिताया तो इसका मतलब मैं सबसे बड़ा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Peter and John could say that we are the favorites of Jesus, so we are the greatest one. और पतरस और यूहन्ना ये कह सकते थे हम तो दोनों यीशु के बहुत खास हैं तो हम बड़े हैं। No, 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 no. नहीं 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 नहीं, Everybody is equal for Jesus. सभी लोग यीशु के लिए बराबर Now हैं। listen further. अब सुनिए इस बात को। Luke 9 लूका 9 describes that James and John wanting to call down fire from heaven to destroy a village. लूका और 9 में आप देखिए याकूब और यूहन्ना ये कहते हैं कि परमेश्वर यीशु के सामने कि हम स्वर्ग से आग गिरा देते हैं ताकि इस गांव को खत्म कर दें। Hallelujah. हालेलुया। Look at their faith. आप देखिए उनके विश्वास को, Look at their faith life. आप विश्वास के जीवन को देखिए But उनके, look at also their attitude. लेकिन उनके रवैये को भी देखिए। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes you have the power, कई बार आपके पास सामर्थ होती है but God doesn't allow you because until you understand and get mature how to use the power, लेकिन परमेश्वर आपको अनुमति नहीं देता उसको इस्तेमाल करने की तब तक जब तक आप परिपक्व ना हो जाएं, उस लेवल तक ना आ जाएं। and we know a famous lady in the Bible in the book of John chapter 4, और हम एक महिला, खास महिला को जानते हैं जो बहुत प्रसिद्ध महिला है यूहन्ना 4 अध्याय में, the woman at the well, जो कुएं के पास जो महिला आई थी and there was some internal dialogues. और वहां पर कुछ वार्तालाप हुआ And what disciples said? और चेलों ने क्या बोला? Why is he talking to her? ओ वो ये इससे, इस महिला से क्यों बात कर रहा Why है? is he talking to her? वो इस स्त्री से क्यों बात कर रहा है? Now we look at the attitude of disciples on the contrast with the attitude of Jesus very clear. और हम अब इस बात को देख सकते हैं कि चेलों का रवैया कैसा था और उसके प्रति यीशु का रवैया उस जगह पर कैसा था। Let's understand it more. आइए इस बात को और ज्यादा समझें हम। We need to have the attitude of Jesus. और हमें हमारे अंदर यीशु का रवैया लेकर आना जरूरी है। The good news is जो अच्छी खबर ये है, our attitude can change because we are a new creation. हमारा रवैया बदल सकता है क्योंकि हम एक नई सृष्टि हैं। Let's see, I want to show you two elements of Jesus' attitude. मैं आपको यीशु के रवैये के दो भाग, दो तत्व दिखाना चाहता हूँ। Look at the attitude of Jesus. यीशु का रवैया देखिए। Let's see if he's also taking children away from him, if he's also calling fire from heaven. What is the attitude of Jesus? आप देखिए यीशु का रवैया क्या है, क्या वो भी स्वर्ग से आग गिरा रहा है, क्या वो भी बच्चों को दूर कर रहा है? Two elements of the attitude of Jesus. यीशु के रवैये के दो तत्व हम देखते हैं। Number one, सबसे पहला, the compassion for the lost. खोए हुओं के लिए दया। Let's read in verse 35 and 36. 35 और 36 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और उसके बाद जब उसने भीड़ को देखा Yes. तो उसको लोगों पर तरस आया। Amen. आमीन। Attitude of Jesus. यीशु का रवैया, When he saw the multitude, जब उसने भीड़ को देखा he was moved with compassion for them. उसको उन पर दया आई, तरस आया। आजकल के सेवक कई बार अपनी भीड़ को देखकर ही परेशान हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। पास्टर जी की पत्नी, पास्टर जी के लोग, हम सब लोग जब भीड़ को देखेंगे तो हम लोग तरस से भर जाना है। किससे भर जाना है?
आपको मालूम है यीशु किन लोगों के लिए तरस से भर गया? जो पापी लोग थे, जो बेकार लोग थे, जिनको कोई पसंद नहीं करता था, उनको न्याय कर सकता था, बोल सकता था बाकियों की तरह, oh they are bad people. हाँ, ये तो बुरे लोग हैं, पापी हैं ये। That's why I always say Mother Teresa once said like this. और इसीलिए मैं हमेशा इस बात को बताता हूँ कि मदर टेरेसा ने एक बात इस प्रकार से कही एक समय, If you always judge people, अगर हर समय तुम लोगों का न्याय ही करते रहोगे, then you will not have time to love them. तो उनसे प्रेम करने का समय तुम्हारे पास नहीं रहेगा। Are you listening, people क्या आप of सुन God? रहे हैं परमेश्वर के लोगों? If you're going to have compassion on people, we have to see them as Jesus saw them. तो अगर आप लोगों पर दया करेंगे, उन पर तरस खाएंगे, तो आप बिल्कुल लोगों को वैसे देख पाएंगे जैसा यीशु ने देखा था। Can we confess that, Lord, forgive me that sometimes I also had a kind of attitude of Jesus, of disciple. क्या हम प्रभु से माफी मांग सकते हैं इस बात को कहते हुए कि प्रभु मुझे माफ करें, क्योंकि कई बार मेरा भी रवैया उन चेलों के समान ही रहा। Let's have a caring attitude. आइए हम परवाह करने वाला एक रवैया रखें। Let's have the attitude of Jesus. यीशु के समान अपना रवैया करें। Number 2, दूसरी बात, the attitude of Jesus. यीशु का जो रवैया था। Second one, दूसरा, understanding of the lost. खोए हुओं के प्रति समझ। Let's see what is the understanding of lost in the eyes of Jesus, in the understanding of Jesus. आइए यीशु की समझ और यीशु की नजरों से देखें कि उसका खोए हुओं के प्रति उसकी समझ क्या थी। Go ahead, yeah. उस पर तरस आया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। When Jesus had compassion on them, जब यीशु ने उनको देखकर तरस आया, Jesus gave 2 reasons. यीशु ने 2 कारण बताए। Number 1, सबसे पहला, they were weary. और वो थके हुए लोग हैं। Number 2, दूसरा, they were scattered. और वो बिखरे हुए भटके हुए लोग हैं। That is what we need to understand. और यही बात हमें भी समझनी जरूरी है। When we go for the ministry, जब हम सेविकाई के लिए when जाते we हैं, see believers, जब हम विश्वासियों को when we देखते see हैं, our neighbors, जब हम अपने पड़ोसियों को देखते it's हैं, easy to blame our neighbors. बहुत आसान है आरोप लगाना अपने पड़ोसी पर। It's easy to blame our relatives. बहुत आसान है अपने रिश्तेदारों पर एक दोष लगा देना। No, they cannot come to the Lord. नहीं, वो तो आ ही नहीं They are सकते प्रभु bad में। people. वो तो बुरे लोग हैं, पापी हैं वो They लोग। are very bad. वो बहुत Their बुरे attitude हैं। is bad. उनका रवैया बुरा है। I know, people of God, मैं जानता हूँ परमेश्वर के we लोगों, were also very bad once. हम भी एक समय पर बहुत बुरे थे। But who we are today? लेकिन आज हम कौन हैं? Are we special? क्या हम खास हैं? Yes, now. जी हाँ, अब हैं। But are they special? लेकिन क्या वो खास हैं? Yes, they are also special जी like हाँ, us. वो भी हमारे जैसे खास They हैं। may take little longer than us. हो सकता है हमसे थोड़ा ज्यादा समय उनको लग जाए। Maybe they are abusive. हो सकता है कि आज वो गलत भाषा का इस्तेमाल करते, गाली देते हैं। Maybe they are cursing people. हो सकता है लोगों को श्राप देते हैं। Maybe they are very vagabonds kind of हो people. सकता है कि गुंडे के समान है वो लोग। Maybe they are not right हो people. सकता है सही लोग नहीं है वो। But you know what? लेकिन क्या आप जानते हैं, That's why Jesus is telling them, इसीलिए यीशु उनसे कह रहा है they are the people who have no shepherd. कि ये वैसे हैं जिनका कोई भी चरवाहा नहीं है। They are the sheep who are weary and scattered. उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं है और भटके हुए हैं। Somebody say, my neighbors and my relatives and my friend and my colleagues are weary and scattered. कोई इस बात को कहे कि मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी वो बिखरे हुए हैं, भटके हुए हैं। Why? क्यों? Why they are weary and scattered? क्यों वो थके हुए हैं, क्यों भटके हुए हैं? Because we cannot see underneath. क्योंकि हम उनके जीवन के पर्दे के पीछे नहीं देख सकते हैं। Underneath. हम नीचे नहीं देख सकते हैं। In replication movement, और एप्लीकेशन क्या मूवमेंट में we give an example of a problem tree. हम एक प्रॉब्लम ट्री का, परेशानी के पेड़ का एक उदाहरण देते हैं। So problem tree. परेशानी का पेड़। What problem tree is? परेशानी का पेड़ क्या है? We teach our people. हम अपने लोगों को सिखाते हैं। We see in society murders, हम ये कहते हैं कि समाज में हत्या हो रहे हैं, rapes, बलात्कार हो रहे हैं, drugs, ड्रग्स नशा हो रहा है, corruption, भ्रष्टाचार है, and human trafficking. और शोषण, लोगों का शोषण हो रहा है। Lot of problems. अलग अलग प्रकार की परेशानियां हैं। So we all say, oh, we have this problem in our country, but we don't see what is underneath, what is in the roots of those problems. What is the real problem? हम सभी मिलकर समाज में हम बात करते हैं कि समाज में ये परेशानी है, वो परेशानी है, ऐसे ये वाली दिक्कत है, लेकिन हम सभी नीचे नहीं देखते कि उस जड़ में आकर जड़ की परेशानी क्या है। That is why Jesus, इसीलिए यीशु, he doesn't look the tree, वो पेड़ को नहीं उसने देखा, but he also sees the root
problem. लेकिन वो जड़ की परेशानी को भी देखता है। And what is the root problem? और जड़ की परेशानी क्या है? People are in anger. लोग गुस्से में हैं, They are moving in hatred. नफरत में चल रहे हैं, They are moving in unforgiveness. वो माफ नहीं कर रहे, They are in some problem. वो किसी ना किसी They are परेशानी में हैं, lonely and weary. वो अकेले हैं और थके हुए हैं। Why? क्यों? Because inside they are broken. क्योंकि अंदर से वो टूटे हुए हैं, Inside they are hurt. अंदर से वो चोट खाए हुए हैं, Inside they are angry. अंदर से एक क्रोध, एक गुस्सा उनके अंदर है। And that is why और इसीलिए when something is inside, the furious shape will come outside. और इसीलिए जब कुछ अंदर दबा रहता है तो एक भयानक रूप बाहर निकल कर आता है। इसीलिए तो वो 5 शादियां कर चुकी थी और छठवे के साथ रह रही थी, और सब उसके समय में यही देख रहे थे कि ये 5 कर चुकी है, छठवे के साथ रह रही है। पर जब यीशु ने देखा, यीशु ने उसको ऊपर क्या था वो भी बता दिया और अंदर क्या था वो भी बता दिया। यस, हालेलुया। और उसको बोला, एक्चुअली में दुनिया सोच रही है कि तू छठवे पति के साथ रह रही है, अब लोग तेरा इंतजार करेंगे तू 7वें के साथ कब रहेगी। पर मैं तुझे बताना चाहता हूं, तुझे ना तो छठवा चाहिए था, ना वो 5 चाहिए था, ना अब 7वां चाहिए। तू पूरे ही गलत रास्ते पर है, तेरी प्यास ही अलग है। अगर तूने मुझे जाना होता तो मुझसे जीवन का जल मांगा होता, क्योंकि जो पानी तू पीती है उससे तुझे फिर प्यास लगेगी, पर जो जल मैं तुझे दूंगा उससे तू फिर कभी प्यासी ना होगी। हालेलुया, आमेन, ओह मैन, आमेन, प्रेज गॉड। ये लोग एक दिन बहुत गुस्से में हैं, एक दिन बहुत नफरत में, एक दिन बहुत कड़वाहट में। ये अलग अलग जो रवैया इनका बना जा रहा है, बाहर के लोग ऐसे हम। अब तो हमारा क्या, हम जो प्रभु को जान के भी ऐसे रह रहे हैं, उनका क्या? वो तो प्रभु को नहीं जानते और उनके अंदर वो कुछ दुख है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसके लिए यीशु आपको और मुझे भेज रहा है, जिसके लिए प्रभु आपको और मुझे भेज रहा है, जिसके लिए प्रभु कह रहा प्रार्थना तो करो, सबसे पहले भाग तो लो इस मिशन में। हम बाहर से देख रहे हैं कि लोग, अभी मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर में एक दूसरे को मार रहे हैं, जला रहे हैं। पूरा मणिपुर के चर्चेस जो है उस पर बहुत अटैक हो गया, कई चर्चेस खत्म कर दिए, जला डाले। पर अंदर क्या है? बाहर से तो बहुत भयानक रूप दिख रहा है, पर अंदर क्या है? और यीशु ने जब इनको देखा, यीशु को दया आई। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों को अंदर से देखना चालू कर देंगे तो आपको उस क्रोध के अंदर, उस बहुत बड़े परेशानी के अंदर भी वो दया दिखने लगेगी। आपको लगेगा कि ये लोग ऐसे क्यों हो रहे हैं? Why are they like this? क्यों वो इस प्रकार से हैं? Like a sheep without a shepherd. और इस प्रकार से जिनका रखवाला, जिनका चरवाहा है ही We नहीं। need to understand that sinner need a savior. हमें इस बात को समझना है कि एक पापी को एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। That's the first thing. सबसे पहली बात So ये let's है। have compassion. सो आइए अपने अंदर हम उस दया को You cannot रखें। preach the gospel. आप सुसमाचार नहीं सुना You सकते, cannot be God's worker आप परमेश्वर के सेवक नहीं बन सकते if you don't have the compassion. अगर आपके अंदर दया नहीं है। Don't take bad people as bad people. बुरे लोगों को बुरे लोग जैसे मत देखें, Try to see underneath. उनके नीचे देखने की कोशिश करें, Try to see the roots. जड़ों को देखने की कोशिश करें। Why are they angry? क्यों वो गुस्से में है? Why are they in hatred? क्यों वो नफरत में है? Why? What is the problem? परेशानी क्या है? बिल्कुल वैसे ही हम प्रभु के बच्चे हैं ना। हमारे घर में जब शारीरिक छोटे बच्चे हमारे होते हैं, हमारा बच्चा मुंह फुला के बैठा है, हमारा बच्चा नाराज बैठा है, हम जान लेते हैं इसको मैंने वो फोन नहीं दिया इसलिए बहुत शांत होके बैठा है, इसको फोन दे दूंगा ठीक हो जाएगा। यानी कि हम इतने समझदार हैं कि मेरा बच्चा क्यों नाराज है, क्यों बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, क्यों बहुत ज़्यादा जो है चीख रहा है, क्यों बहुत गुस्सा कर रहा है, हम बड़े आराम से जान लेते हैं, क्योंकि इसको वो नहीं मिला जो इसको चाहिए। वैसे ही प्रभु यीशु हम सभी बच्चों की ज़रूरत को जानता है। हम बड़े होकर भी उसके बच्चे हैं। हम वो जो छोटे बच्चे खिलौने के लिए करते हैं, अभी फोन के लिए करते हैं, हम बड़े होकर भी अपने लिए करते हैं। हम बहुत गुस्से में हैं क्योंकि मेरा लोन कैंसिल हो गया। हम बहुत गुस्से में हैं क्योंकि मैं एक पार्टी में जाने वाला था, मैं वो कपड़ा को नहीं खरीद सका। हम बहुत गुस्से में हैं क्योंकि मेरा भाई मुझे धोखा दे दिया, घर अपने नाम करा लिया है। हम बहुत गुस्से में हैं, बहुत नफरत में भरे हुए हैं, मार देना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है मेरे किसी करीबी दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया है।
Sorry, my tongue is becoming a tongue twister today. Every word is flowing out. But listen to this. सुनिए इस बात को। अंदर क्या है? यीशु उन पर दया करता है। वो लोग अच्छे थे, बुरे थे, हो सकता है वो लोग वही थे जो कल उसको क्रूस पे चढ़ाने वाले थे 3 दिन बाद, लेकिन यीशु कहता है ये वो भेड़े हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है, ये भटके हुए हैं और ये थके हुए हैं। Let's have that attitude for the people. आइए हम लोगों के लिए इस प्रकार का एक रवैया रखें। Next week I'm going to preach more about it. अगले हफ्ते मैं और प्रचार करूंगा इसके I'm going बारे to में। finish this message here today. और यहीं पर मैं